Voting currently underway in 117 assembly seats in a fierce multi-cornered contest in Punjab. AAP, Akali Dal, BSP Alliance, the Congress, BJP, PLC, the Akali Dal Sanyukt and the Sanyukt Samaj Morcha in a fierce battle across the state. While the Congress has come under fire for the drug menace and for corruption, it is banking on reducing power tariff and having a Dalit face as its chief minister. The AAP has come under the scanner for alleged Khalistani links, is showcasing the Delhi model of governance. Almost all parties have promised freebies like cash shops, reservation for locals and government jobs if elected. Let's show you a cross-section of what leaders across Punjab are saying this morning. मैं पंजाब ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। लोकतंत्र का त्यौहार है साहब। इसी दिन के लिए लाखों हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी कि हम अपना वोट का इस्तेमाल करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की सरकार चुने। वो सरकार चुने जो देश और ख़ास तौर पे यहाँ पंजाब की अखंडता को ध्यान में रखे। और मैं मानता हूँ कि हमारे देश के और ख़ास तौर पे पंजाब के जो हमारे नागरिक हैं बड़े जागरूक हैं और जो भी पंजाब को टुकड़े टुकड़े करके राज करने के सपने देख रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि सब नौजवान आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ खड़े हैं। नए वोटर जो हैं वो अपना उज्जवल भविष्य देखते हैं। वो आज उनको पंजाब की बेहतरी के लिए मेरी भी अपील है, अभी बढ़ चढ़ के सभी आगे। While we're talking about Punjab, I quickly want to go across to Dimple Yadav as she speaks to Rahul Srivastav in Uttar Pradesh and focus for a moment on what she's saying. Okay, that's Akhilesh Yadav's wife, Dimple Yadav. She spoke to Rahul Srivastav. I'll play that out in just a moment. We had a lengthy interview with Akhilesh Yadav. We'll go back to Rahul in just a moment. We're focusing for the time being on Punjab and everything that's happening across the state. Remember, you've got 2 crore plus voters, 24,740 polling stations, 1,304 candidates in the fray, and there is a pitched battle being fought. People in Punjab yearning for change, that very clear. Now the question is, who can appear as the agent of change? The Akalis are saying, we are the grand old party of Punjab, give us an opportunity now that you've tried the Congress. The AAP says that they are the true agents of change. And you've got the BJP hoping to expand its presence across the state of Punjab, fighting as they are this time without the umbrella of the Akali to bind them down. So very, very interesting battle taking place. Dimple Yadav, I think, we're ready to play that out for you. Let's listen to Dimple Yadav speaking to Rahul Srivastav. Dimple, 2 questions. Crucial election. You prayed well for it. Very crucial election, and I think so. बहुत positive results आने वाले हैं. Are you happy that you have contested in politics, that the family is together? The family is together, and moreover, मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इस बार साथ है और वह विकास वाली सोच वाली सरकार लाने के लिए एकमत होके लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा रही है बहुत ज्यादा कि महिलाएं बड़ी खुश हैं। क्या प्लीज? बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, महिलाएं सारी उनके साथ हैं। मैं समझती हूँ बीजेपी की सरकार ने ऐसे परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, पर हकीकत ऐसी नहीं है। हमें रोज आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती है और महिलाओं के साथ तो उत्पीड़न के मामले बड़े हैं, जैसे कि हमारे पास एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो डायल 100 और 1090 नाम की ऐसी सेवाएं शुरू की थी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर और बेहतरीन हो। और मैं समझती हूँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो और लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की बात करता है तो वो समाजवादी पार्टी को वोट ना करे। थैंक यू वेरी मच, वी विश यू लक। So that's Dimple Yadav. She's campaigning for her husband and for the Samajwadi Party across the state.
the fact that women feel safer, the fact that there is no Gunda Raj, as was alleged during the Akhilesh regime, is one of the big focus points that Yogi Adityanath brings out again and again in his campaign. Better law and order, safety for women, the ability for women to travel after 7 p.m. How strongly does this resonate in Uttar Pradesh will be critical. Remember, in neighboring Bihar, Nitish Kumar, because there was fear about what might happen if Tejaswi and the RJD came to power, Nitish Kumar had in the third phase of the Bihar elections an 11% gap between women who voted for the JDU BJP combine versus the RJD, and that is very substantial and significant. So could women vote disproportionately for the BJP on account of their perceived law and order and safety and security? That will be something to look at. Kamaljeet Sandhu joins us this morning from Amritsar East, Ashutosh Mishra from Patiala, Manjeet Saigal from Lambi. Ashutosh, has Captain Saab emerged in action and is he out and about or not yet? What's happening on the ground in Patiala? And also Kamaljeet Sandhu this morning from Amritsar East, where a very critical battle is being fought, the battle between Bikram Singh Majithia and Navjot Singh Sidhu. Kamaljeet, take it away. Well, one of the most critical fights is in Amritsar East. We have with us Gurjeet Singh Aula. Sir, you are the MP of Amritsar. You've seen this entire fight being fought very keenly. How do you see this? Who's going to be the winner? Obviously, you're from the Congress party. You may say Navjot Singh Sidhu, but many are shutting doors on him, and those visuals are out there. बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम रहती है जब कोई नेशनल लीडर होता है, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, कोई कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी, जब मंत्री लेवल के जहाँ नेशनल लीडरशिप होती है उसकी थोड़ी एंटी इंकम्बेंसी नीचे हो जाती है, वो उतना टाइम दे नहीं पाते जितना लोग चाहते हैं, तो वो दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धू जीतेंगे क्योंकि जो अमन शांति चाहता है, जो अमृतसर है, ये गुरुओं की धरती है, इसमें लोग उसके हक में वोट करें। जो काफी लोग हैं जो कि उनको मुख्यमंत्री चेहरा देखना चाहते थे, अमृतसर के लोग, वो काफी नाराज भी हैं। नहीं, वो कम लोग थे, जितने जो ज्यादा लोग चन्नी के हक में थे, इसलिए चन्नी का फैसला हुआ। अहम बात यह है कि कांग्रेस पूरे 5 साल रही, लेकिन जो आप लोग दिखा रहे हैं वो तो आप सिर्फ 111 दिन दिखा रहे हैं, तकरीबन 3 महीने। 4.5 साल भी तो कांग्रेस ही थी, तो परफॉर्मेंस की जो बात आती है उसमें एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, जब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो लोक राय से चलती है, जैसे तो कलेक्टिव लीडरशिप पे जाते हैं हर स्टेट में, लेकिन पंजाब एक ऐसी स्टेट है हर बार लोग कहते हैं कि इसको मुख्यमंत्री का चेहरा रखो। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब चेहरा बनाया था, लोक राय थी कि कैप्टन को आगे लगाया जाए, कैप्टन को चेहरा अनाउंस किया जाए, तो जब पार्टी ने अनाउंस किया तो लोगों ने बनाया भी। अब कैप्टन साहब ने काम नहीं किया, तो जो कैप्टन साहब ने जिस तरीके, वो तो कांग्रेस के अंडर काम नहीं किया। अब आप एक दलित कार्ड देख रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी पर, कितना आप लोगों को भरोसा? ये दलित कार्ड नहीं है, ये वही चीज है जैसे 2004 में आप यही कहेंगे ना, दलित कार्ड, उसके साथ परसेंटेज वोट ज्यादा है। लेकिन जब सोनिया गांधी जी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाना था तो उन्होंने बोला था डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे, तब तो हम 2% थे। उनको पता था ये इंटेलिजेंट है, काम कर सकता है देश के लिए। इसी तरह अब चन्नी है, कोई ना कोई किसी कास्ट से तो हो गई, कास्ट से मत जोड़ के देखिए। चन्नी साहब की परफॉर्मेंस देखिए, 111 दिन में वो काम करते हैं, सादगी है। बड़ी देर के बाद एक रजवाड़ा शाही से निकलकर एक आम लोगों के बीच में मुख्यमंत्रीशिप आई है, तो लोग ही चाहते थे कि कैप्टन को बनाओ, पार्टी नहीं चाहती। पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप पे जाना चाहती है। The Congress has now moved on to a Dalit face. Will it pay dividends? What about the anti-incumbency? These are several of the questions. But here in Amritsar, the fight is between Navjot Singh Sidhu versus Bikram Singh Majithia. And as Navjot Singh Sidhu told us, this is about Nayak, not the Khalnayak. So he is very confident. His wife is saying this is going to be a one-side contest. But we heard Majithia speak, saying this is all about non-performance. There are no issues that the Congress has solved. There have been pending assignments, and this is what it really takes. And meanwhile, there is the Jeevan Jyot from the Aam Aadmi Party. So right here, the fiercest battle of Punjab in the hotly contested Amritsar East seat. I want to go across to Harmeet Singh Shah. He is our senior editor at India Today Television, has been travelling through Punjab. Harmeet, the sense that you're picking up about the critical issues which will determine how the voters of Punjab ultimately cast their mandate today. Well, this election is all about the Garib Admi and the Amir Admi, the haves and the have-nots, the elites and the non-elites. So this is the central theme of this election. And when you hear Charanjit Singh Channi there, he would not really play out his Dalit card.
what he would identify himself with is that I am the son of the soil, मैं गरीब का बेटा हूँ. So this has to understood in larger context. We just heard Mr. Ojla there. He was also saying that he is just not a Dalit candidate. There can be a Dalit candidate, but at the end of the day, he is from a section which has been traditionally downtrodden. So this is very nuanced. So far as we all know that Punjab has the highest concentration of 32% Dalit population, and among them Masbis, Ravidasiyas and Ramdasiyas. They form 74% of the overall Dalit population, which is 32%, 74% of that 32% chunk. So one thing is absolutely clear here that as this election comes in the wake of farm agitation, the issue is clear. This is an election of livelihoods. This is an election between the haves and the have-nots. So religion card, caste card, they all take some sort of a backstage in these elections. Okay, we've got Ashutosh Mishra from Patiala. We have Manjeet Saigal from Lambi. Ashutosh Mishra, Captain Amrinder Singh fighting in Patiala Urban, the constituency which has been his family bastion for decades. And has he emerged this morning? Is he out and about meeting voters, or will it be some time before he actually comes out and takes stock of what's happening on the ground? Not yet, Rahul, not yet. And as we have been told that he'll be arriving shortly here, we're right outside his main gate of this, luxurious palace, and say maybe around 20 to 25 minutes that will take when Captain Amrinder Singh will come out, then cast his vote at the nearest polling station, and they perhaps, go out around and meet voters, see how the voting is happening at different polling stations. And that perhaps, the biggest accusation was against Captain Amrinder Singh, that the Maharaja of Patiala never bothered to meet his voters, not only in his constituency but all across the state, and that perhaps led to the massive anti-incumbency. You heard the member of parliament from Amritsar who also said, the Maharaja tag, that perhaps costed him in the chief ministership, and after 4.5 years riding on the massive anti-incumbency, he was removed, formed his own party, aligning with the BJP. Now the challenge is this time perhaps would be for the Amrinder Singh, forget about the rest of the state, to save his own bastion, his own turf. When you have such charges that you never meet your voters, you never visited Patiala despite elected as the MLA here, you were the chief minister. If you have been far away from the voters, would they come to you when during the election? There have been crucial time during the COVID outbreak where Captain Amrinder Singh. So now this would be perhaps the time when the voters will think about that as well, and that is also being cashed by the Akali Dal and also the Aam Aadmi Party candidate. That look, when there was massive crisis, your MLA who has been a chief minister for 4.5 years almost. देखिए, मुख्यमंत्री जी तो निशाना साधेंगे ही। सबका साथ और सैफई परिवार का विकास, इस तरह का नारा। अगर कोई आंख बंद कर ले, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी? डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं, जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है सफाई का, वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे गुजरात वाला मामला है जिसमें दोषियों को गुजरात वाला मामला है जिसमें दोषियों को सजा दी गई है। आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो लोग। भाजपा कह रही है वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो गुजरात वाले मामले में दोषी करार, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं। कोई आतंकवादी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है, आपके साथ भी फुटवाई स्ट्रेटेजी से चलती है, उन्हें पता है। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं हैं? इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? उत्तर प्रदेश में तमाम
जगह पर जब विकास दिखाना था तो चीन की फोटो चोरी करके कौन लाया? जिस समय उन्हें कारखाना दिखाना था उस समय आपने अमेरिका का कारखाना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पार्टी नहीं है। तो कहां You prayed well for it? वेरी क्रूशियल इलेक्शन एंड आई थिंक सो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। Are you happy that you have contested in politics, that the family is together? द फैमिलीज टुगेदर एंड मोर ओवर मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इस बार साथ है और वह विकास वाली सोच वाली सरकार लाने के लिए एकमत होके। लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा रही है बहुत ज्यादा कि महिलाएं बड़ी खुश हैं। प्लीज बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, महिलाएं सारी उनके साथ हैं। मैं समझती हूँ बीजेपी की सरकार ने ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, पर हकीकत ऐसी नहीं है। हमें रोज़ आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती है और महिलाओं के साथ तो उत्पीड़न के मामले बड़े हैं, जैसे कि हमारे पास एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो डायल 100 और 1090 नाम की ऐसी सेवाएं शुरू की थी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर और बेहतरीन हो। और मैं समझती हूँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो और लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की बात करता है तो वो समाजवादी पार्टी को वोट ना करे। I have Akhilesh Yadav with me. Has arrived in Saifai. He had a very busy schedule yesterday because one of the senior party leaders, Mr. Ahmed Hassan, passed away. Akhilesh, a lot depends on the kind of chemistry that the Yadav family has always been known for in this round of elections. You have tried to bring the entire family together. You have tried to win over certain segments which have not voted traditionally. How does it look today in this phase for you? जैसा पहले चरण में किसान ने, नौजवानों ने मतदान किया, हर वर्ग के लोगों ने गठबंधन के साथ खड़े होकर के मतदान किया। दूसरे चरण में भी वही सब कुछ देखने को मिला है। सवाल यह है कि जनता के जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। जिन वादों को भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में किए थे वो हर वादा उनका जुमला निकला। और तीसरे चरण का चुनाव वो है जहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी जीती थी। हालांकि पिछली बार वो हम लोगों को उतना वोट नहीं मिला पार्टी को जितना मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से देखा है लोगों ने कि उनके साथ अन्याय हुआ, जो विकास की गति थी वो रुक गई है। किसान को परेशानी उठानी पड़ी, न उनकी फसल खरीदी गई, धान लूटा गया, आलू बर्बाद हुआ, बिजली महंगी है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, जानवर से खेत नहीं बच पा रहे। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इस बार मतदान करके जनता देना चाहती है। समाजवादी पार्टी जनता के साथ है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश, पिछले चुनाव में ये देखा गया कि बीजेपी ने इस आपके परिवार की या आपकी मुलायम सिंह यादव, आप, शिवपाल जी की एक तो फैमिली फूड, उसके अलावा एक जो केमिस्ट्री थी आप लोगों की उसको अरिथमेटिक से हराया। नॉन यादव, ओबीसी, दलित वोट प्लस अपर कास्ट को लेकर के वो आपसे आगे चले गए। 29 सीटों का लॉस हुआ आप लोगों को। इस बार आपने कोशिशें की हैं, कुछ नेताओं को लाए हैं। क्या आपको लगता है अम्बेडकरवादी आपकी जो कोशिश हुई है, ये कोशिशें आपको उस वोट बैंक को खींचने में मदद करेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। अगर नेताजी साथ नहीं खड़े हैं तो मैं जानता हूँ वो क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेताजी साथ खड़े हो जाएं, वो अपने क्षेत्र में अगर वोट मांगने जाते हैं, केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए अगर वो अपील करते हैं, अगर उनकी इच्छा है, ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी राजनीति करते करते, अगर उन्हें पता है कि चुनाव हो रहा है और उनके क्षेत्र में लड़ रहा हूँ मैं, अगर वोट मांगने आते हैं तो तकलीफ़ है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ़ इस बात की है कि इस बार जनता उनके खिलाफ खड़ी है। नेताजी, परिवार, चाचा सब लोग साथ आ गए हैं। ये बड़ी तकलीफ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को झगड़ा लगा के राजनीति करती है, लोगों को बांट के राजनीति करती है। जब उत्तर प्रदेश की जनता को और किसानों को अपनी आय दोगुनी है तब इनकी भाषा क्या है? नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, और भाषा देखिए क्या है इनकी। तो इसलिए इस बार मेरी कोशिश रही कि जहाँ क्षेत्रीय दलों को मैं साथ लाया हूँ, इस क्षेत्र में भी जो हमारी पार्टी से अलग हो गए थे, चाहे वो चाचा ने जो नई पार्टी बना ली थी, उन सब को साथ लाने की कोशिश है। और उसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है कि जैसा पहले चरण में हुआ, दूसरे चरण में हुआ,
तीसरे चरण में भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। बीएसपी का थोड़ा मध्यम होना क्या आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है बाइपोलर कॉन्टेस्ट होने में? नहीं, कई जगह बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ आए और मैंने जगह जगह अपील की है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान से खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारे अम्बेडकरवादी लोग ये जानते हैं कि यूपी में जब भी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है उनके लोग नहीं हैं अपॉइंटमेंट में, जब प्रोफेसर्स की भर्ती हुई है उसमें कोई उनका नहीं दिखाई देता है और जिस तरीके से लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है वो अम्बेडकरवादी जानते हैं कि अंतोगत्वा ये लोकतंत्र में संविधान में जो उन्हें व्यवस्था मिली थी हक और सम्मान की वो ये सरकार छीनने वाली है। It's very interesting to see you talking about this Ambedkar ideology and signaling. एक ज़रूरी फैक्ट ये भी है कि इस इलाके में एक परेशानी रही कि या पूरे यूपी में कि एक शिकायत रही कि समाजवादी पार्टी आ रही एक सरकार आने पे यादव्स का होल्ड बढ़ता है, नॉन यादव ओबीसी इग्नोर हो जाते हैं। क्या उसको करेक्ट करना चाहेंगे इस चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस बार पहले दिन से ये फैसला लिया कि सबको स्थान और सबको सम्मान, सबको संगठन में भी लिया। अम्बेडकर वाहिनी बनाई है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती हैं। हमारे पास अल्पसंख्यक का प्रकोष्ठ है, वो अलग चीज़ है, पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ लोग हैं। तो कोशिश ये की गई जो जातियां समाजवादी पार्टी में पहले जुड़ी हुई थी, बीच में कुछ समय के लिए नाराज़गी कुछ कारणों की बात हुई, लेकिन इस बार सभी को जोड़ करके साथ लाने का काम किया है संगठन के माध्यम से और समय समय पे उनके बीच में कार्यक्रम करने से। अखिलेश, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि योगी आदित्यनाथ कल बोल रहे थे पहले परिवारवाद, फिर गुंडागर्दीवाद और अब आतंकवाद, दैट नाउ दे आर सेइंग दैट यू इवन हैव अ टेरर कनेक्ट। देखिए, जब उनकी भाषा कोई सुनना नहीं चाहता, जो उनकी भाषा है वो क्या भाषा है, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये चुनाव जो भाषा जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चुनाव है? चुनाव उत्तर प्रदेश का इसलिए है कि आपने जनता को जो वादे किए थे, जो किसान को कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए, आप किसानों का धान नहीं खरीद पाए, लूट हो गई धान में, आप किसानों को खाद और डीएपी समय पर नहीं दे पाए, बोरी में चोरी हो गई, बिजली का बिल महंगा है, अन्ना पशु या खुले जानवर इतने घूम रहे हैं कि उनको खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। तो ये जो सवाल हैं इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। इस डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि अन्याय बढ़ा है, उत्पीड़न बढ़ा है और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज़ डबल हुई है तो वह भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व और पोलराइजेशन की वेव थी 3 बार